Good morning, good afternoon, good evening. Um, I'm starting a series of rubric study, and today we are going to discuss delusion disgraces. Actually, what we do in my clinic, academy students attend the clinic, हैंड्स ऑन क्लिनिकल ट्रेनिंग होता है तो वो साइड में बैठे रहते हैं और हम लोग ना एक्सरसाइज करते हैं काफी बार पेशेंट्स के बीच में टाइम मिला तो वी डिस्कस रूब्रिक्स और रेमेडीज और थीम्स वॉट एवर जैसे टाइम मिला वैसे करना कल ही हम लोग एक आयुष करके एकेडमी का स्टूडेंट था उसने बोला सर आप रेमेडी कैसे पढ़ते हो मुझे ये बताओ तो यस्टरडे वी स्टडीड वी डिड एन एक्सरसाइज ऑन कोली बैसिलिनम तो वो पूरा पढ़ा मैंने कैसे थीम बनाई आई हैड नेवर रेड कोली बैसिलिनम बिफोर तो यस्टरडे वी स्टडीड ऐसे रूब्रिक स्टडी भी करते हैं तो while going through the diary I found rubric ऑफ डेल्यूजन डिसग्रेस्ड वी हैड स्टडीड डिसग्रेस लास्ट ईयर 2023 में हम लोगों ने एक एक्सरसाइज की थी एकेडमी स्टूडेंट और नॉर्मल स्टूडेंट्स भी थे उनके साथ कि एक रूब्रिक को कैसे समझना है उसके एट्रीब्यूट्स कैसे समझना है उसके मतलब कैसे समझने हैं और ये एक्सरसाइज क्यों करना है आपको पता है आई हैव टोल्ड यू I tell the academy students also and I have told in seminars also इस exercise से synapses बढ़ते हैं hundreds and thousands and lakhs of synapses बढ़ेंगे और ये synapses बढ़ने के बाद whenever you will come across in future whenever you will come across the same version the same theme or the same understanding same attributes of a rubric which we had done exercise your mind will go back and retrieve all those memories for you समझो आज एक्सरसाइज करेंगे ना डेल्यूजन डिसग्रेस्ड वाला तो वो आगे जाके काम आएगा सपोज वी गेट अ केस एंड it sounds similar to this because of this increased synapses our mind goes back into those memories and get those इसको associative memory pop-ups बोलते हैं it comes to you automatically और ये होने लगता है the more you exercise the more you have that associative memory pop-ups 2 साल पहले हाँ 2 ढाई साल पहले हम लोग ने ऐसे रेमेडी स्टडी की थी 2 साल के बाद आई गॉट अ केस एंड आई गॉट 4 केसेस ऑफ द सेम रेमेडी बिकॉज आई वी हैड डन दैट एक्सरसाइज वी हैड रिवाइज्ड ऑल्सो सो व्हेन वी आई वाज गोइंग थ्रू दैट केस इट सडनली स्टार्टेड कमिंग टू मी आई नो दिस पर्सन इज सेइंग तो वो एक्सरसाइज किया हुआ रहता है ना उससे बॉडी मेमोरी माइंड माइंड अपना ब्रेन उससे it goes into that these synapses help into retrieving those memories and give you those memory pop-ups तो मुझे समझ में आ गया what I'm looking for so these exercises are very very important and we'll do this exercise today's rubric is delusion disgraced she is so what do you mean by disgrace there are various words parallel to that but today we are going to understand disgrace let me share my screen and I have just written some attributes. I would like to read that, the definition and all. Okay. So, disgrace is a situation or a state where a person loses his own standing. It's a state of discredit where he loses his respect, his trust, his credibility. Now, why does it happen? This is because of the misconduct, the failure, unethical or immoral behavior, scandals or crime like robbery and other things. These actions are often done by person himself or his close associate or relative. I'll let you know when I'll explain a case where a misconduct of a close associate or a relative has brought on disgrace to that person. Okay. So what is the impact? Impact is it's very profound impact where a person loses as I told respect trust credibility then which can lead to punishment if he has done some crime एक सोशल प्रेशर होता है सोशल ऑस्ट्रेसिज्म होती है आपको थोड़ा सा बार किया जाता है सोशल फंक्शन से आपको अलाउ नहीं किया जाता काफी जगह होता है इन विलेजेस इट इज मोस्ट वी सी वेयर अ पर्सन इज ऑस्ट्रासाइज्ड from public meetings or public functions. It can have a tremendous emotional impact. But you know what? Again, the disgrace is a subjective experience.
इट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द कल्चर, सोशल एंड पर्सनल कॉन्टेक्स्ट। जहाँ पे बहुत फैनेटिसिज्म है, जहाँ पे बहुत कल्चर कंजर्वेटिव है, वहां पे इम्पैक्ट बहुत ज्यादा दिखाई देगा। और जहाँ पे नहीं है, सिटीज टाउन में थोड़ा सा इम्पैक्ट कम होगा, बट द फीलिंग रिमेन्स द सेम। सो what are we going to do is we are going to understand some remedies with cases. ओके, उसमें से थोड़ा रूब्रिक अंडरस्टैंडिंग भी करेंगे, व्हाट रूब्रिक्स विल बी एडेड टू दिस बेसिक rubric of delusion disgraced she is. So we'll see how many remedies we have. Okay. So this is the rubric delusion disgraced she is. And we have 11 remedies: causticum, calisulf, maxsulf, natrum sulf, nuxomica, platina, robinia, staphysagra, and sulfur. So, what are the important aspects to see or understand in this rubric? Okay. So, we'll see a first remedy, that is causticum. Okay. So causticum, there was a patient, elderly patient around 50, 55. He had a stroke, and there was right-sided weakness and many other complaints. He was hypertensive, he was diabetic. So I asked him what was the issue. He said there was some issue at his work where he tried to help his co-workers. उसने उसके कोवर्कर्स को, और जो अंडर प्रिविलेज क्लास होता है, जो क्लास 4 वर्कर्स होते हैं, लेबरर जैसे, जैनिटर्स जो साफ-सफाई करते हैं, स्वीपर्स होते हैं, पियून्स होते हैं ना, उस क्लास को वो मदद करना चाहता था और मैनेजमेंट से पंगा लिया। पंगा लिया तो मैनेजमेंट ने उसको सब यूनियन के सामने, सबके सामने इतना इंसल्ट किया, इतनी गंदी गालियाँ, और उसका नाम एक फ्रॉड लिस्ट में ऐड किया कि आदमी इस फ्रॉड का हिस्सा हो सकता है। इट वाज जस्ट अ डाउटफुल लिस्ट। लेकिन ये सब उसकी लांछना की गई, उसको अपमान किया गया, सब किया गया, और ये बंदा, उससे क्या हो गया ना, विड्रॉ हो गया। ही वेंट इनटू अ शेल। He isolated himself. He was weeping. He was very sad. He was into grief as if. So the rubrics I took was ailments from mortification. He was mortified in front of others. As a person, उसके family ने बताया, he was very caring about others. He was very sympathetic. उसको ना दया आती है लोगों पर ज्यादा। जैसे मैंने कहा, उसके जॉब पे वो क्लास 4 जैसे स्वीपर, जेनिटर्स, जो साफ सफाई कामगार होते हैं, उनके लिए वो करना चाहता था। तो फैमिली ने बताया कि बहुत सिंपैथेटिक है सर, उसको किसी पर भी दया आ जाती है जल्दी। ही फील्स पिटी एंड ही हेल्प्स देम आउट विथ मनी और बाय हिज टाइम, एफर्ट, एनीथिंग। ही कैनॉट बेयर इनजस्टिस। उसको नाइंसाफी पसंद नहीं। जहां पर नाइंसाफी हुई, यह बंदा खड़ा हो गया। बहुत वॉयलेंट या एग्रेसिव नहीं था, सेंसिटिव बंदा था। और सेंसिटिव उनके लिए होता था जो अंडर प्रिविलेज थे। तो मैंने रूब्रिक्स लिए, एलिमेंट्स फ्रॉम मॉडिफिकेशन। अब मैंने उसको पूछा कि आपके साथ ये बिहेवियर होगा, यू आर ट्रीटेड, यू आर इंसल्टेड इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। ही सेड यस, आई फेल्ट रियली बैड। आई आस्क्ड हिम व्हाट डू यू मीन बाय बैड। वो बोला मैंने आज तक जितना कमाया हुआ था, सब कुछ गया। मेरा नाम, मेरा सब कुछ, मेरा एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। आई इंटरप्रिटेड दिस एज delusion disgraced. So the rubric I took, considered for the prescription of causticum, was ailments from mortification, delusion disgraced she is. He was very caring person, so cares full of, sympathetic, injustice cannot support, and sensitive to crying of children. Sensitive to crying of children. Children मतलब क्या? बच्चे who are dependent on others. जैसे मैंने कहा, अंडर प्रिविलेज लोग हैं, क्लास 4 लेबरर्स हैं, दोज हु कैनॉट फाइट फॉर देमसेल्व्स, उनको ये जाके मदद करता था। So I took it as sensitive to the crying of children. So this, I prescribed him causticum. He was very weepy, he was very sensitive. फैमिली ने क्या बताया मालूम है? ही वॉज वेरी स्ट्रांग एट सेंसिटिव। मूवी देखते देखते रोता था। किसी के साथ अगर गलत हो रहा है तो उसको बुरा लगता था।
So that kind of person he was, and he recovered very well with LM potencies of causticum. Okay. And next remedy, it was a case of multiple problems of a young girl. She just had a baby, and but there was a lot of stress. She didn't look happy. ऐसा लगा कुछ तो अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा कुछ छुपा हुआ है. तो आई आस्क्ड हर कि व्हाट हैपेंड, क्या हो गया. तो वो सब कंप्लेंट्स वगैरह सुनाई, बैक एक है, एंजाइटी इश्यूज है, और बहुत सारा वीपी फीलिंग है. बट आई आस्क्ड हर सिस्टर, देवर फैमिली स्टेटस में टू सिस्टर्स एंड वन ब्रदर. ओके, थ्री सिस्टर्स एंड वन ब्रदर, एंड वन ऑफ द सिस्टर हैज हैड रेफर्ड हर टू मी. तो मैंने उसको पूछा कि कैसा है, हस्बैंड को पूछा कैसी है वो. शी सेड शी इज वेरी फ्रेंडली, वेरी कम्युनिकेटिव. पूरी सोसाइटी में उसको सब लोग जानते हैं, उसके नाम से जानते हैं. मतलब जब से शादी होके आई है, 4-5 साल ही हुए शादी को, लेकिन तब से वो इतनी घुल मिल जाती है किसी से भी इमीडिएटली, और किसी को ना नहीं कह सकती है. बहुत केयरिंग है. जैसे मेड्स को कैरिंग है, जैसे वर्कर्स को, जो स्वीपर्स है इसके बिल्डिंग के, बहुत कैरिंग है. किसी को भी, जैसे मेड्स को और हाउस हेल्प्स को ज्यादा वो मदद करेगी, पैसा भी देगी. और सबसे अच्छा रहना उसको पसंद है. तो मैंने पूछा क्यों इतना अच्छा रहना. वो बोली सर मुझे ना झगड़ा पसंद नहीं है, मैं झगड़ा कर ही नहीं सकती हूँ. मुझे सब लोग, घर में शांति चाहिए, हारमोनी चाहिए. मैं बोला ऐसी क्या, बोला ऐसी क्या बात हो गई, इतनी अच्छी बंदी, इतनी प्यारी बंदी, इतनी केयरिंग लड़की, क्यों बीमार हो गई. बोले सर क्या हो गया ना, मेरी जो छोटी बहन है ना, मेरी शादी को 2-3 साल हुए थे, अभी ये चौथा साल चल रहा है जैसे मैंने बताया, एंड शी हैज अ बेबी नाउ. एंड व्हाट हैपेंड, उसकी छोटी बहन ने भाग कर शादी कर ली. भाग कर शादी करने के बाद में शी वॉज अपसेट, द फैमिली वॉज अपसेट. बट she was more sad when her in-laws started taunting her. She felt very bad about it. और इन-लॉज ब्लेम्ड द फैमिली कि आपके फैमिली को देखो कोई, आ, मतलब आपकी फैमिली की औकात क्या है, आपके माँ बाप ने सिखाया नहीं ठीक से, आपकी बहन भाग गई किसी गैर लड़के के साथ, ये क्या ठीक बात है क्या. तो उसको ना खानदान को खराब खराब बोलने लगे. She was criticized, her family, her parents, her ethics, her values were criticized, and she felt bad, but she couldn't fight back. I asked her what happened. She said, sir, I felt very bad. बोलो why you felt bad? बोला बहन ने ऐसा किया ना, तो हमारे खानदान की इज्जत चली गई. इतना खराब लगा हमको कि हमारा जो कुछ भी क्रेडिट था सोसाइटी में सब चला गया, और मेरे इन लॉज की आंखों में मेरे घर का कोई वैल्यू नहीं रहा. आई टुक दैट एज डेल्यूजन डिसग्रेस्ड. एंड शी वॉज वेरी अफायबल वुमन, बेनोवलेंट, कम्युनिकेटिव, ना नहीं कह सकती है, प्लीजिंग डिजायर्स टू प्लीज, हार्मनी डिजायर, क्वारलिंग एवर्शन, एंड डेल्यूजन डिसग्रेस्ड. शी वॉज प्रिस्क्राइब्ड काली सल्फ, and she did well with Kali Self. I started with 200 and went on to NM, but she did amazing with Kali Self. Next remedy in this, what will, which remedy? Okay, so, huh. Now, I had one friend, उसकी सिस्टर की केस है. क्या हुआ, शी पहले फैमिली स्टेटस, शी हैड ट्रिमेंडस गैस्ट्राइटिस, चीफ कंप्लीट, इतनी गैस्ट्राइटिस, शी वाज लाइक इट वाज अनबेरेबल. शी हैड 2 to 3 antacids a day. Now she was suggested or advised endoscopy, for which she was not ready. So the friend referred her to me. So I asked her what happened. She said so much of gastritis that I cannot bear. I got admitted twice. Well, so much of pain. She said, yes, I can't bear that pain. Despite taking antacids, those syrups, those tablets, PPIs, whatever we call.
Then I asked her what happened, since when. She said, since 2 to 3 months, I am feeling this and I am unable to, and I am not ready for endoscopy and everything. I know it is gastritis, but I said, what is worrying you? She said, I have only son and he is in love with someone. And that girl is, I don't like her. She doesn't belong. This family, these patients belong to a very, very reputed family इन अ डिस्ट्रिक्ट. और डिस्ट्रिक्ट प्लेस में कैसे होता है ना, एवरीबडी नोज ईच अदर, एटलीस्ट बिग शॉट्स. ये बड़े तो बड़े खानदान से ये पेशेंट थी, और उसका लड़का 12th में था, एंड ही हैड एन अफेयर विद अ गर्ल ऑफ अ लोअर क्लास एंड नॉट वेल टू डू फैमिली. तो ये बोली, इतना टाइम बात करते हैं, इतना ये होता है ना सर, मुझे डर लगने लग गया है कि ये कुछ ऐसा कर नहीं दे. मैं बोला, ऐसा क्या कर नहीं दे? मैं बोला, तुम्हें एग्जैक्टली फियर क्या है? बोली, सर कुछ हुआ तो, वो लड़की प्रेग्नेंट हुई तो. मैंने बोला, यस स्पेसिफिक, मैंने पूछा कि तुमको एग्जैक्ट डर क्या है. वो बोली, सर मुझे ऐसा लगा कि मेरे खानदान का नाम खराब हो जाएगा. तो बोला, खानदान का नाम कैसे खराब हो गया? सपोज, देन शी गिव मी दैट एग्जांपल, दैट अगर वो प्रेग्नेंट हुई तो, या फिर बाहर सबको पता चला तो, हमारी बदनामी हुई तो. मैं बोला, अच्छा. मैं बोला, इतना डर? शी सेड, यस. Again, I perceived this as disgrace, but here it is not delusion disgrace, it is fear disgraced. Fear of being disgrace. Okay. ये सेकेंड केस थी. ये तकरीबन मेरी पुरानी केस है, अराउंड 10 years बैक. एंड दिस पर्सन हैड सम चेस्ट इन्फेक्शन, एंड ही हैड कम टू मी, or he had very gastritis, chest infection, everything. He saw a pulmonologist. He said there is a pneumonic patch consolidation, and he gave antibiotics. Usse gastritis or body. There was increase in gastritis, so he gave PPIs also, antacids also. But he was not feeling better. So I asked him, what is worrying you? What is your concern? He said, I should not get tuberculosis. I said, why? Well, it's a disease. I said, is it a grave disease? Do you fear that it will cause harm to you, or it will deteriorate health, and do you fear death, or what exactly what? He said, no. If I get tuberculosis, I will be ostracized from my society. I said, मैं बोला, सोसाइटी से सर हमको बेदखल किया जाएगा. I have a name, I have a reputation in my village. He was from a village, a small town place. तो वहां पे फिर इज्जत नहीं मिलेगी, मेरा नाम खराब हो जाएगा. आई सेड, ओके. मैं बोला, क्या खराब हो जाएगा? बोली, सर हमारी सब कुछ खराब हो जाएगा सर, जिसके लिए आज हम लोग जाने जाते हैं, हमारी फैमिली को जो रेस्पेक्ट है, वो सब चला जाएगा सोसाइटी में. हियर अगेन आई टुक फियर ऑफ डिसग्रेस. ही वेंट बैक, ही नेवर केम बैक. He came back after 6 to 8 months and he was on AKT. I said, AKT? बोला, सर जिसका डर था वही हो गया, मेरे को ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोसिस हो गया, एंड नाउ एवरीथिंग इज ruined, एवरीथिंग इज गॉन. मैं बोला, व्हाट हैज गॉन? हमारा सर पूरा रिस्पेक्ट, हमारा जो विलेज में था वो सब गया. इसको मैंने डेल्यूजन डिसग्रेस्ड लिया. सो एक ही रेमेडी में फियर डिसग्रेस भी है और डेल्यूजन डिसग्रेस्ड भी है, और वो है रॉबिनिया. ओके. सो दिस इज रोबिनिया. आई प्रिस्क्राइब रोबिनिया इन बोथ केसेस. और पहले केसेस में इतना ट्रिमेंडस पेन था, एब्डोमिनल पेन, उसको मैंने एंग्विश पेन फ्रॉम स्टमक ऐसे भी लिया. और एक चीज है ना, कैसे है ना, अभी तीसरी केस बताता हूँ रोबिनिया की. एक देर वॉज अ फीमेल अराउंड 45. शी वॉज मैरिड सिंस 25 years. She had a elder son of 22 and one of 16, two sons, and she was suffering from panic disorder, very bad. हाइपोकॉन्ड्रियाक, मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा, गैस्ट्राइटिस है, मुझे बैक पेन है, मुझे अभी नींद नहीं आती है. ऑल कंप्लेंट्स, ऑल दिस. आई सेड, व्हाट इज योर कंसर्न?
व्हाई यू वरीड आई एंड जैसे फैमिली स्टेटस में पूछा, चीफ कंप्लेंट होने के बाद फैमिली स्टेटस में two kids and her, so there was no name of husband. I said what happened? She said her husband died few years back. मैं बोला तब से आप बीमार हो? Since then you are? She said yes, little little I started losing my sleep and over the years मुझे एक 2-3 साल में और तकलीफ बढ़ने लग गई। ये 2-3 साल से ज्यादा तकलीफ है और कहीं ठीक नहीं हो पा रही हूँ मैं बोला अच्छा, तो बेटे क्या कर रहे हैं? से इज 22 years old, ही इज वर्किंग। एक 17 years का है, वो अभी 11th 12th में पढ़ रहा है। तो बोला कंसर्न क्या है? सर मुझे ना डर लगता है। बोला क्या डर लगता है? मैंने बोला पहले पूछा हस्बैंड का क्या हो गया? बोला सर हस्बैंड डाइड, ही वॉज अल्कोहलिक। और मैं बोला हुआ क्या इतना टेंशन वाला? वो बोला क्या हो गया ना सर, ही वॉज वर्किंग एट अ फर्म and one day he stole all the money from the drawer and he went AWOL, AWOL बोलते हैं, एब्सेंस विदाउट लीव। सो एब्सेंट, गायब। 3-4 दिन, एक हफ्ते बाद वो कहीं तो दारू पी के पड़ा हुआ मिला। उसने पूरा पैसा खर्च लिया था। ही हैड स्पेंट ऑल द मनी विच ही हैड रॉब्ड फ्रॉम दिस प्लेस एंड देन ही वाज कॉट, ही वाज पनिश्ड, ही वाज सेंट टू जेल। आई सेड सो? शी सेड आई फेल्ट वेरी बैड। हमारी पूरी इज्जत गई, हमारा हमारा एक कलंक सा आ गया। ऐसे डिसग्रेस बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलोगे उसको आप? एक कलंक आ गया हमारी फैमिली पे कि ये बंदा, ये हस्बैंड तुम्हारा जेल गया रॉबरी केस में। सो इट वाज वेरी बैड। हम लोग किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। मैंने बोला अब डर क्या है? दैट इज अ गॉन, सो आई टुक हियर डेल्यूजन डिसग्रेस्ड। ओके। तो मैंने पूछा अभी कंसर्न क्या है आपका? तो बोले मुझे ना हमेशा डर लगा रहता है, मेरे बेटे कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। शी वॉज अ वेरी impatient mother. No, why are you impatient? What is there? She said, I have a strong fear that my son will start drinking alcohol and they may do the same thing as my husband. बोला what same thing? बोला वही करेंगे और फिर बदनामी और फिर वो कलंक आएगा। तो delusion disgraced and fear disgrace again in the same case, यहाँ पर भी रॉबिनिया। एंड वन थिंग व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, मैंने जब रॉबिनिया रीड किया ना, देयर इज अ रूब्रिक दैट सोम्बर एवरीथिंग दैट इज एवर्शन टू। सोम्बर दैट, अभी सोम्बर का मतलब क्या है? सोम्बर इज ग्रे, डार्क, थोड़ा सा शेडी रहता है ना, क्रीपी प्लेसेस जैसे लगते हैं। तो उनको ना उन चीजों से डर लगता है कि यहाँ कुछ गलत नहीं हो जाए, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो जाए जिससे बदनामी हो जाए, जिससे कुछ अपने ऊपर गलत ये आ जाए। तो समथिंग वेरी शेडी, है ना, संदेहपूर्ण, कि यहाँ पे डाउट है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। तो उसको ना इन चीजों से बहुत एवर्शन होती है कि नहीं 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 ये नहीं करना। वो बेटे को कुछ करने नहीं देती थी, नहीं नहीं वहां नहीं जाना, ये नहीं करना, भाई तू कुछ गलत संगत में चला जाएगा, कुछ गलत कर बैठेगा। तो ये जो गलत चीज है ना, ये डर होता है ना कि गलत चीज नहीं हो जाए, इनसे दूर रहो। दीज आर कॉल्ड सोम्बर थिंग्स, शेडी, ब्लैक और व्हाइट नहीं, ग्रे, जिसपे डाउट किया जा सकता है, ऐसी चीजों से उनको दूर रहना पसंद है, एवर्शन। सोम्बर एवरीथिंग दैट इज एवर्शन। सो दिस वाज ऑल अबाउट रोबिनिया। नाउ विच रेमेडी? आई थिंक स्टैफी सेग्रिया लेते हैं। लेट मी सी। स्टैफी सेग्रिया, ओके। स्टैफी सेग्रिया का एक केस बताता हूं मैं। स्टैफी सेग्रिया एक सीए का केस था एंड ही हैड माउथ कैंसर एंड माउथ कैंसर था। तो मैंने पूछा क्या गड़बड़ हो गई लाइफ में, घर में कितने? बोले सर 2 छोटे बच्चे हैं और मेरी शादी को कुछ 15 साल हुए। ही वॉज अराउंड 48। मैंने बोला क्या गड़बड़ हो गई, ऐसी क्या चीज हो गई कि आपने इतनी बड़ी बीमारी ले ली? उसने बोला सर जॉब है ना, जॉब पे कुछ गड़बड़ हो गई। मैंने बोले क्या हो गया? सर मैं सुपरवाइजर हूँ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का और हमारा प्रोडक्शन लैग बिहाइंड कर रहा था, पीछे था।
तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ना, यूनिट बढ़ाने के लिए उन्होंने मेरे को जो प्रोडक्शन हेड थे, अच्छे दोस्त थे, तो वो 2-3 बंदों ने बोला कि हमको प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, तो सेफ्टी प्रोटोकॉल थोड़ा-सा एक्सटेंड कर दे। मतलब इफ वी आर प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स अ डे, दे सेड वी कैन वी मेक इट टू 120, क्योंकि 100 के ऊपर ओवरलोड होने लग गया कि वहां से अलार्म बजता था कि यू आर ओवरलोडिंग इट, मशीनरी फेलियर हो सकती है। तो उन्होंने कहा 10 का 20 का बढ़ा देते हैं 1 महीने के लिए, जैसा प्रोडक्शन लैग कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो लोग ने सेफ्टी प्रोटोकॉल कॉम्प्रोमाइज करने को, और ये मना नहीं कर पाया। ही वॉज द सुपरवाइजर ऑफ दैट सेफ्टी प्रोटोकॉल, तो उसने ना मना नहीं कर पाया, तो उसने सेफ्टी प्रोटोकॉल बढ़ा दिया। वो बोले 1 महीने के लिए बढ़ाने का। दे सेड फाइन, एवरीथिंग वॉज एग्रीड, एवरीथिंग वॉज सेड एंड डन। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, साल भर के बाद प्रोडक्शन यूनिट पूरा कोलैप्स हो गया। और इंक्वायरी में ये समझ में आया कि सेफ्टी प्रोटोकॉल वॉज मिसमैनेज्ड, वॉज मॉडिफाइड, एंड ही वॉज हेल्ड रेस्पॉन्सिबल। तभी प्रोडक्शन यूनिट ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। मैंने बोला क्या हो गया उस बात से? मैंने बोला सर मेरी तो गलती नहीं थी। मैंने बोला कैसे नहीं गलती थी? यू आर द सुपरवाइजर। हाँ लेकिन मुझे प्रेशर किया गया, प्रोडक्शन वालों ने, सेल्स वालों ने, सब ने, सब ने मुझे ना प्रेशर किया गया है। मैंने बोला अच्छा, तो बोले इससे इम्पैक्ट क्या हो गया मुझे बताओ, मुझे तो लगा इसकी गलती है। वो बोला क्या हो गया ना सर, मेरा सब क्रेडिट लॉस हो गया ना, मेरे को अभी जॉब कहाँ मिलेगा, मेरी पूरी बदनामी हो गई, आई लॉस्ट माई क्रेडिट, माई फैमिली, माई रिलेटिव स्टार्टेड लुकिंग मी विथ अ डिफरेंट एंगल। मैंने उनको बताया कि मेरी गलती नहीं थी, उन्होंने मेरे से करवाया था। मैंने बोला फिर भी यू शुड हैव फॉट, यू शुड हैव स्टूड बाय, यू वाई डिडंट यू टेक अ स्टैंड? ही सेड सर मेरे को स्टैंड ही लेने नहीं आता है। तो अटेंडेंट ने उसके साथ जो आए थे बताया सर यही तो इनका प्रॉब्लम है, ये खुल के बोल नहीं सकते, अपोज नहीं कर सकते। तो मैंने इसको डेल्यूजन डिसग्रेस लिया, कॉवर्डाइस लिया, स्पीच लो सॉफ्ट वॉइस। एल क्लिपबोर्ड्स में वीडियो के एंड में एडिटिंग में डाल दूंगा। आई गेव हिम स्टेफिस एग्रिया। सो दिस इज अ डिसग्रेस। जहां पर वो कॉन्फ्लिक्ट में था, स्टेफिस एग्रिया में एक ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट होता है, करो कि नहीं करो, और वो कर जाता है और वो रिग्रेट करता है, और वो स्टैंड ही नहीं ले सकता क्योंकि कॉवर्डाइस होता है। कॉवर्डाइस without courage to have an opinion. We'll see that rubric. Okay. I'll share the screen. So this is the first clipboard. Let me enhance it. कॉस्टिकम का जो केस मैंने बताई है, दिस वाज काली सेल्फ, delusion disgraced, zoom in. Oh, this was Robinia, फियर डिसग्रेस एंड, ये जर्नी है, फियर डिसग्रेस टू डेल्यूजन डिसग्रेस, या फिर डेल्यूजन डिसग्रेस से फियर डिसग्रेस, एंड सोम्बर एवर्शन टू दैट इज एवरीथिंग। एंड दिस वाज स्टेफिस एग्रियास, elements from mortification, delusion disgraced she is, and cowardice without courage to express it. Hope this helped you, and from next onwards we are going to start another rubric, but I hope you understood what you mean by disgrace and the rubric delusion, disgraced she is. So, signing off for now.